Hello and welcome to Foundation course in English 2. Today we are going to discuss about Unit 2 of Block 1, that is writing paragraphs. We have already discussed about writing paragraphs in the Unit 1 of this block. Now in this session we are going to discuss about how to write paragraphs and the development of a paragraph. So topics that are going to be covered in this particular session: the development of a paragraph, illustrations, descriptions, cause and effect, definition, and comparison and contrast. These are the different ways I would like to tell you in this session so that you can understand how can you develop the paragraph. We have already discussed that what is actually a paragraph. It's a sequence of sentences that deals with one particular theme, and it always contains a topic sentence with supporting details along with colorful vocabulary and a concluding statement. But the main portion comes here, that is how to develop the paragraph. You have already started with this controlling idea or a theme, central theme you have started, but now how to develop that paragraph. So developing the paragraph can be considered in two broad categories. Those which stick to the scope of the topic, in which you can describe the paragraph, is illustration. You can give any of the instances or any illustration you have in your mind to develop the paragraph. That means you have a topic sentence and then you can support your topic sentence with different illustrations. You can give a description of that topic statement, or you can define that topic, or another way is to give cause and effect. I would like to discuss all these things in detail, but another broad category in which we develop the paragraph, it's the technique which involves a second topic, that is comparison and contrast. This will come after you do all these things. That is, first you have to do illustration, description, definition, cause and effect. You can choose among all these. It's not mandatory that you have to choose all of them. You can use either 1, 2 or 3 in your paragraph. But once after using these techniques, you can involve comparison and contrast also. But it always depends on the topic, what kind of a topic you are dealing with in that paragraph. Maybe it's a global warming. Then you can compare and contrast the situation, the environment of today's world and the world in 1970s or 50s. So you can compare and contrast the conditions. It always depends on the topic. It always depends on that particular title on which you are describing or developing the paragraph. So after this, we are going to discuss all these topics in detail so that you can understand how can you develop the topic with these particular techniques. First, I told you that you can use illustration. Illustration means it's the easiest way of developing a topic. सबसे आसान तरीका रहेगा ये टॉपिक को डेवलप करने का. एंड एग्जाम्पल अगर आप देते हैं किसी भी तरीके का, आपकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस रहा या कुछ एग्जाम्पल आपने अपनी लाइफ में फेस किया या कहीं पढ़ा या कहीं देखा, अगर आप वो ऐड करते हैं तो ऑलवेज इट एड्स टू रीडर्स इंटरेस्ट. अब मान लीजिए आप पूरा थियोरेटिकल वे में उसे एक्सप्लेन करे जा रहे हैं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, कई बार मोनोटोनस हो जाता है. वहीं इफ यू आर एडिंग एग्जाम्पल्स एंड गिविंग इलस्ट्रेशंस, it adds to the reader's interest. He would like to read the topic further, and it also helps to understand difficult and abstract generalizations. Abstracts, that is not concrete, that those you cannot touch. That means in your imaginations or those which you can feel. So यहाँ पर illustrations आपको help करती हैं वो condition समझने में भी, वो generalization समझने में भी जो abstract terms में है. कुछ difficult चीजें हो जाती हैं समझाना, कई बार मुश्किल हो जाता है, वहाँ आप एग्जाम्पल देकर किसी को आसानी से समझा सकते हैं अपना व्यू पॉइंट. अगर आप कोई फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई हेट्रेड, कोई लव, तो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि लव ऑफ अ पेरेंट फॉर अ चाइल्ड. तो वहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपका जो रीडर है उसे समझ में भी आएगा एंड उस डिफिकल्ट जनरलाइजेशन या उस डिफिकल्ट स्टेटमेंट को आपको समझाने में, एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म को समझाने में आपको आसानी भी रहेगी. So first technique that you can use is illustrations. The illustrations can be from anywhere around the world so that reader can understand. ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा illustration दें जो
आउट ऑफ माइंड हो या आउट ऑफ ऑर्डर हो, जिसे रीडर को ही समझने में बहुत परेशानी हो. सो इलस्ट्रेशन शुड बी वेरी इजी एंड simple to understand. It always helps you to understand difficult and abstract generalizations. So this is the first technique. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जब आप करेंगे, यानी कि आप जब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, दूसरा तरीका जब मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज इलस्ट्रेशन, सेकंड इज डिस्क्रिप्शन. जब आप दूसरा तरीका बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन का, वहां आप अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं. यानी कि जब आपको कहा जाए कि आप डिस्क्रिप्शन दीजिए, या आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्क्रिप्शन देना अच्छा होगा, बट व्हाट टू इंक्लूड इन दैट डिस्क्रिप्शन. क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन कम्स हियर, दैट डिस्क्रिप्शन में ऐड क्या किया जाए. डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर सकते हैं उसकी प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक. जरूरी नहीं है कि आप यही चीजें ऐड करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक. हो सकता है ताजमहल है, मान लीजिए, उसको डिस्क्रिप्शन देना है आपने, तो आप उसका डायरेक्शन बता सकते हैं. ताजमहल पे आपने पैराग्राफ लिखना है तो उसकी प्लेस बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं, उसके आसपास का एम्बियंस बता सकते हैं, या वो कहाँ पर है, कौन से एरिया में सिचुएट करता है, उसके आसपास क्या है. इस तरीके से आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. एंड मेजरमेंट्स, वेट, साइज, वॉल्यूम, डिस्टेंस, कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आप उसका मेजरमेंट दे सकते हैं, वेट, साइज, वॉल्यूम, डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, शेप बता सकते हैं, उसकी पैटर्न बता सकते हैं, कलर, मान लीजिए ताजमहल ही है तो व्हाइट कलर, टेक्सचर बता सकते हैं, किस चीज से बना है, व्हाइट मार्बल से बना है, कैसी शेप है उसकी, उसके आसपास किस तरीके का एनवायरनमेंट है, मटेरियल किससे बना है, सब्सटेंसेस. ये कुछ चीजें हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है. उनके अकॉर्डिंगली आप जब उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो इन सब चीजों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं व्हाइल गिविंग डिस्क्रिप्शंस. So this is another way of developing the paragraph, developing the body of the paragraph, जिससे कि आप अपने टॉपिक को और आगे बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट कुड बी कॉज एंड इफेक्ट. कॉज, यू नो, जिसकी वजह से कुछ हुआ, द कॉज. एनालाइजिंग द कॉज कैन बी क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स टास्क. आप जानते हैं किसी भी चीज का कॉज निकालना, एनालाइज करना काफी कॉम्प्लेक्स रहेगा. इफेक्ट, दैट मीन्स कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, जो किसी कॉज की वजह से हुआ. मान लीजिए अगर फ्लड आ गए हैं, इफेक्ट है ये, कॉन्सिक्वेंस है, बट उसका कॉज रहा एक्सेसिव रेन. तो कॉज एक्सेसिव रेन रहा, इफेक्ट क्या रहा, फ्लड्स आ गए. सो कॉज एंड इफेक्ट. पहले तो किसी चीज का कॉज निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है. आप ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल लेते हुए आप उसका कॉज समझा सकते हैं कि क्या कॉज रहा उसका ग्लोबल वार्मिंग का होने का. मे बी हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, हम एसीज यूज कर रहे हैं, कार्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जिससे एक्सेसिव पोल्यूशन हो रहा है, या बहुत सारी ऐसी नई नई टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एनवायरमेंट में और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. तो दिस कुड बी द कॉज. एंड व्हाट इज द इफेक्ट नाउ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं और एनवायरमेंट बहुत चेंज होता जा रहा है. हर साल गर्मी जो है बढ़ती जा रही है. This could be the effect, consequences of this cause. So consequences can be handled in much the same way as reason or causes. But now the main idea is regarded as causing the consequences. So इस तरीके से आप cause and effect को एक दूसरे से relate करते हुए टॉपिक को आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं. इस चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो शायद आप और भी बेहतर समझ पाएंगे. आपने बहुत सारा खाना खाया एंड यू हैव टेकन लॉट ऑफ जंक फूड. बहुत सारा ऐसा खाना खाया जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था. अब आपने खा तो लिया, दिस इज द रीजन, एंड व्हाट हैपेंस नाउ, यू विल बी इन बेड, यू आर इल नाउ, यू हैव गॉट स्टमक एक और एनी अदर प्रॉब्लम. सो दिस इज द इफेक्ट, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस. सो थ्रू दिस लाइन यू कैन अंडरस्टैंड कॉज जो होता है वो रीजन रहता है, इफेक्ट जो रहेगा वो कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे. सो दिस कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. ऐसे ही आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक में आप कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन करें, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइटल और द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ. अनदर वे ऑफ डेवलपिंग द पैराग्राफ इज डेफिनेशन. You can define also.
आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिफाइन करते हुए उसके सिनोनिम्स देते हुए अपनी रीडर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए ऑनेस्टी या ट्रस्टवर्दीनेस, तो इस टॉपिक के आप आगे और सिनोनिम्स दे सकते हैं या उसे डिफाइन कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस को, ऑनेस्टी को, या कोई और भी टर्म है जिसे आप एक्सप्लेन करके आपको लगता है कि आप बेटर समझा पाएंगे, तो यू कैन एक्सप्लेन। मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजिंग टॉपिक है, तो एडवर्टाइजिंग की आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं, एनी नॉन पेड फॉर्म ऑफ any paid form of, you can say, a way of expressing the promotion of any particular device or any of the object or services. So defining a term can be one of the way, or by giving a synonym, or by placing the word in a general class and then distinguish it from others in that class. ये एक तरीका रहता है कि आप उसे पहले एक्सप्लेन करें, यानी कि उसे डिफाइन करें और एक जनरल क्लास में उसे समझाएं, एंड देन यू कैन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर्स इन दैट क्लास। कि एडवर्टाइजिंग अगर आप दें, आप उसकी डिफाइन कर सकते हैं कि पेड फॉर्म ऑफ एक वे है जिससे कि आप प्रमोशन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का, अपने सर्विस का या अपने प्रोडक्ट का, एंड देन यू कैन डिस्टिंग्विश इट कि एक ये प्रोपेगेंडा से, या आप कह सकते हैं एक किसी और तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं, क्लासिफाइड्स होते हैं, किस तरीके से ये उनसे अलग है। आप इस तरीके से अपने एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में समझा सकते हैं कि पब्लिक रिलेशंस जहाँ पे आपने मेंटेन करने होते हैं, कई बार प्रोपेगेंडा आप यूज करते हैं, कई बार आप अलग अलग तरीके अपनाते हैं, प्रेस रिलीजेस देते हैं, उनसे ये किस तरीके से अलग है एडवर्टाइजिंग। सो एक्सप्लेनिंग समथिंग स्पेशली इफ द रीडर्स मे नॉट बी फेमिलियर, हो सकता है कि उन्हें ना पता हो कि एडवर्टाइजमेंट और एक प्रोपेगेंडा या एक प्रेस रिलीज में क्या डिफरेंस है। सो आप उन्हें पहले डिफाइन करके उनसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कैसे एक एडवर्टाइजमेंट एक प्रोपेगेंडा और एक प्रेस रिलीज से अलग है। ये एक बहुत एक आसान तरीका रहेगा। एक सिनोनिम दे सकते हैं आप उनके, एक्सप्लेन करने के बाद एक जनरल क्लास में उसको रखते हुए आप बाकी जो भी उस क्लास के और अदर ग्रुप में मेंबर्स हैं उनसे आप अलग शो कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर वे। अब एग्जाम्पल के तौर पर टर्म है विडो, सो आप इसकी क्लास बता सकते हैं विमेन। विमेन है क्लास, विमेन तो कोई भी हो सकती है, बट जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो आप उसको बाकी क्लास से, बाकी मेंबर्स ऑफ द क्लास से अलग कैसे बताएंगे, हुज हस्बैंड हैज डाइड। सो इस तरीके से आप इस विमेन को डिफाइन कर सकते हैं। जहां पे कुछ टर्म्स मुश्किल आ जाते हैं, आपने बता दी क्लास, क्लास में बहुत सारे लोग हैं विमेन, जिसमें मे बी मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, बहुत सारी विमेन हो सकती हैं, लेकिन यहाँ जब आपने उसे डिफाइन किया कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, यहाँ आप उसे बाकी ग्रुप में मेंबर से अलग कैसे बता सकते हैं, यहाँ आप समझ पाएंगे। दिस इज अनदर वे, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, बट वो आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप इन्हें इस तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हो, इन टेक्निक्स का यूज कर चुके हो। ये आप सेकेंड ओपिनियन में रखेंगे ओनली आफ्टर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, जब आप उसे डिस्क्राइब कर चुके हैं या उसे डिफाइन कर चुके हैं या उसका कॉज एंड इफेक्ट बता चुके हैं, उसके बाद बारी आती है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की, जहां पर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करते टाइम आप सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को कंपेयर करेंगे, जहां पर आप ये दिखाएंगे कि क्या इस टॉपिक में सिमिलर है और क्या डिससिमिलर है। इस तरीके से आप कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। कंपैरिजन इज सिमिलैरिटी शो करना दो या दो से ज्यादा चीजों में, यानी कि उनके कैरेक्टर्स की, उनकी क्वालिटीज की। कंट्रास्ट इज टू कंपेयर और अप्रेज इन रिस्पेक्ट टू डिफरेंसेस, यानी कि क्या एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के बाद उनके डिफरेंसेस कहाँ पे एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, वो आप बात करेंगे। ये एक तरीका रहता है डेवलप करने का टॉपिक को और ज्यादा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप ग्लोबल वार्मिंग में बता सकते हैं कि आज के वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है, आज का एनवायरनमेंट हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैसा हो गया इन दिस सेंचुरी, एंड आज से 50 इयर्स बैक के साथ जब आप कंपैरिजन करेंगे कि उस टाइम पे एनवायरनमेंट कैसा था और क्या सिचुएशन थी, क्या एनवायरनमेंट था उस टाइम पे, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ जा रहे हैं, इस तरीके से आप दोनों सिचुएशंस को कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और भी किसी टॉपिक में आप कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते हैं कि मैरिड वुमेन कैन बी अ गुड मदर। इस टॉपिक को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप पहले सिमिलैरिटीज देख सकते हैं कि एक वुमेन कैसे अच्छी हो सकती है, एंड देन यू कैन
कंट्रास्ट देम, क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे। अगर एक मैरिड वुमेन है और एक वर्किंग वुमेन है वो, तो कैसे वो एक अच्छी मदर बन सकती हैं वर्किंग वुमेन, और एक नॉन वर्किंग वुमेन जो है वो कैसी मदर बनेगी। आप दोनों के पॉइंट्स को एनालाइज करते हुए दोनों को कंट्रास्ट कर सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस रहेंगे दोनों के बीच में। क्या एक वर्किंग वुमेन जो है वो एक अच्छी मॉम बन पाएंगी, क्योंकि वर्किंग मॉम बाहर जा रही हैं, सब देख रही हैं, सब पहचान रही हैं, आज के वर्ल्ड को समझ रही हैं, तो उनके माइंडसेट क्या रहेगा। वही एक नॉन वर्किंग वुमेन हो सकता है कि वो ज्यादा केयर कर पाए, क्योंकि वो घर पर हैं, बच्चों का ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाए। तो डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे आप कुछ इस तरीके के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू आर, और दिस इज सिमिलर टू दिस, और बोथ ऑफ देम आर डूइंग दिस, ऑल्सो टू एज वेल। दीज आर क्वाइट फ्यू वर्ड्स आई विल लाइक टू टेल यू। जब आप कंपेयर कर रहे हैं तब आप यूज कर सकते हैं। वहीं कंट्रास्ट के केसेस में आप इस तरीके के वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, डिफरेंसेस between the working woman who is a mother and a non-working woman who is a mother. On the other hand, however, but in contrast to, differs from, while, unlike, ये कुछ वर्ड्स रहेंगे जहां आप दोनों के बीच में कंट्रास्ट शो कर पाएंगे, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस शो कर पाएंगे। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स, जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक में आपको कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट शो करना हो, इट डिपेंड्स, इट ऑलवेज डिपेंड्स। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक यही बता रही हूँ कि कोई भी मैंडेटरी नहीं है टेक्निक इनमें से, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं टॉपिक को एक्सप्लेन करने के, बट ये कुछ फ्यू मेजर टिप्स, मेजर टेक्निक्स मैंने आपको इस सेशन में बताई, जिनके थ्रू आप एक अच्छा पैराग्राफ लिख पाएंगे। और एक अच्छा पैराग्राफ, एक इफेक्टिव पैराग्राफ वही कहलाता है जो आपके रीडर के माइंड में एक इम्पैक्ट बना सकेगा। So in order to create an effective paragraph that would make a good impact on your reader, you must use all these techniques, and while handling these techniques you must be very careful. ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आप उन्हें यूज कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा ऑड हो जाएगा। So आपको सोच समझ के कि यहाँ पर कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी और आपके रीडर्स को बेस्ट इम्पैक्ट दे पाएगी, आप उस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। So we'll study more about writing skills in the next sessions, but that is all for this session by now. Thank you. Thanks a lot.